We are doing question number 4 of the exercise 2.4. You have to factorize the quadratic polynomials given to you. And yesterday I was discussing how do we proceed. So if you are going to use an identity, अगर आप identity की help से quadratic polynomial की factorization कर रहे हो, identity सिर्फ तब use होगी, good morning, अगर आपके पास आपके expression में दो perfect squares हैं. But that doesn't guarantee कि आपकी identity apply होगी. Possibility बढ़ जाती है. अगर आपके एक्सप्रेशन में दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट बी एबल टू यूज एन आइडेंटिटी. वहां पे कोई आइडेंटिटी अप्लाइड है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. इन केस यू आर नॉट एबल टू सी टू परफेक्ट स्क्वायर्स, अगर आपको दो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं मिल रहे, देन वी प्रोसीड विद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. To split the middle term, there are certain steps you want to keep in mind. आपने ये लास्ट ईयर किया है, बट आई थिंक यू हैव नॉट डन द वन वेयर द लीडिंग कोएफिशिएंट इज अदर देन 1. यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशंस है, ऑब्जर्व जितने एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप इनको कंपेयर करते हो विद द पार्ट्स यू डिड लास्ट ईयर, जो पहली टर्म है, जो स्क्वायर वाली टर्म है, उसके साथ 1 नहीं है. पिछले साल जितने क्वेश्चंस थे उनमें ना आपके एक्सप्रेशंस इस फॉर्म के थे. So that coefficient of x square did not matter. वो 1 था इसलिए वो important नहीं लगा आपको. यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जितने भी टर्म्स आपको यहाँ दी हुई हैं, सभी के coefficient कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं. I'm going to start with the first one. I will explain the method, and then in case anyone has any question, you may ask. Kindly write down alongside. Question number 4, first part, we have 12x square minus 7x plus 1. We want to split the middle term. आपकी middle term जो होगी, it will be written as two terms, which if combined will give you minus 7x. ऐसी दो टर्म्स बनानी है आपको मिडल टर्म की जगह पे. ऐसी दो टर्म्स बनानी है जिनको अगर आप कंबाइन कर दो, वापस आपको minus 7x मिल जाए. For that, minus 6 minus 1. No, you cannot do that directly. Product आपको लेना है from your first and the last term. minus 4 minus 3. That's right. 12 and 1. The product should be 12. First और last से आपको मिलेगा product. आप क्या product बनाना चाहते हो. Second thing you want to keep in mind is the sum you require. Sum आपको मिलेगा middle term के coefficient से. जो आपकी middle term का coefficient है -7. Now you are looking for two such numbers जिनका product positive 12 हो, sum -7 हो. And there is one way you could do that rather than going for trial and error. Guesswork नहीं करना आपको. जो product आपको चाहिए उसके factors बना लो. You are looking to find out the product 12. तो किन से बनता है 12? 1 multiplied 12, 2 multiplied by 6, 3 multiplied by 4. Since the product is positive 12, I can also write it like -1 multiplied with -12, -2 multiplied with -6, -3 multiplied with -4. Out of all these possible pairs of factors, which one will give you the sum as -7? इन सभी pairs में से किसका total जो बनेगा वो -7 बनेगा? -3 minus 4. That's right. This pair will give you the sum as -7. So this is the correct pair to split your middle term. आपकी middle term split होगी as -3 and -4. और middle term का जो variable है वो x है, तो दोनों के साथ attach हो जाएगा. ये जो सारा काम राइट साइड पे किया है ये वर्किंग कॉलम में करना है आपने, बट टिल यू गेट यूज्ड टू इट, डू you may show it in the fair work as well. If you need to write this in the fair work, you may, but it's not required. ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. दोनों बातों का ध्यान रखना है, हमें कितना सम चाहिए, कितना प्रोडक्ट चाहिए. सम मिलेगा मिडिल टर्म से, प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट और लास्ट से. Your first term remains same, the last term is same.
Kindly stop writing for a while and pay attention. Once you have split your middle term, you don't have to combine it. इसको combine मत कर देना. Combine कर दिया तो वापस previous step पे पहुंच जाओगे. After you have split your middle term, you want to group your terms. Regrouping जिस तरह से करते थे आप. Take the first two terms together and the last two terms together and factorize. See if these have any common factor present. If anyone does not know how to do the factorization, दो terms में से common कैसे ढूंढते हैं? I can discuss that if you want. बिल्कुल अगर हम basic जो method था उस पे जाएं, बिल्कुल basic. You were supposed to write down the factors. 12x can be written as, ये जो पहली टर्म है आपकी वो किनके प्रोडक्ट से बनी है? जो सेकेंड टर्म है इट इज मेड अप ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विद x. इनमें से आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? मैम x and 3. x and 3. 3. So 3x is your common factor. बाकी जो चीजें हैं वो अंदर रह जाएंगी. And if you have taken all the factors outside, the factor left behind is 1. Ma'am, it will be 4x. Sorry. Yes. Sorry. I missed that. Yeah. Thank you so much. Similarly, you may do for the second pair, जो आपकी third और fourth term है. ये step लिखना necessary नहीं है. I advise you, आप directly ये चीज लिखो. जो मैंने factorization किया आप चाहो तो working column में कर सकते हो. Now for the last pair, this can be written as 1 can simply be written as 1. अब इसमें से आपको कुछ common नजर आ रहा है? मैम no. If you have no common factor, Then 0. no, we will take One. 1. We will take 1 as the common factor. अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 4 and 5, चलो आपको 4 और 5 नहीं लेने, आप 25 और 36 कंसिडर कर सकते हो. 25 के और 36 के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है. सो व्हाट विल बी देयर HCF? 1. तो अगर आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा तो आपने क्या लिखना है बाहर ब्रैकेट के? 1. और जो टर्म्स थी वो एज इट इज पीछे रह जाएंगी. अगर 1 कॉमन, 4x minus 1. कीप इन माइंड हमने नेगेटिव फैक्टर कॉमन लिया है, हमारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा. Change होगा. नाउ हाउ डू यू चेक इफ योर ग्रुपिंग इज करेक्ट? मैम 4x minus 1 को इधर ले लेंगे मैम, फिर मैं 3x minus 1 ब्रैकेट. यस दैट्स राइट. 4x minus 1 and 3x minus 1. आपने जो फैक्टराइजेशन की है उसमें बाइनोमियल मैच होनी चाहिए. Once you have done the factorization in pairs, let's go over the steps. Rishabh, sorry. मैम वहाँ पर -4 क्यों नहीं दिया मैम? 3x plus 4x. आप मिडिल टर्म फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हो? यस मैम. बेटा अगर आप इनको कंबाइन करते हो ये दोनों मिडिल टर्म्स को, आपको वापस आपकी ओरिजिनल टर्म मिलेगी. देखो -3 -4 विल बी -7. नो मैम, सेकंड स्टेप में. सेकेंड स्टेप में कॉमन लेने के बाद यस मैम, -4 है मैम. आपने मैम +4 लिखा है. ये यस मैम. ओके मैंने जो बाहर फैक्टर कॉमन लिया है इट इज -1, राइट? जो बाहर फैक्टर है वो -1 है. आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो जरा, देखो आपको ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिलता है वापस. यस मैम. जब भी आप बाहर ब्रैकेट के नेगेटिव फैक्टर लिखोगे अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. बाहर जो फैक्टर लिया है वो नेगेटिव फैक्टर है तो अंदर ब्रैकेट में टर्म्स के जो साइंस होंगे वो चेंज होंगे. सिर्फ नेगेटिव फैक्टर के कारण.
अगर आप पॉजिटिव वन लेते, जस्ट ऑब्जर्व, सेम चीज जो है, आपका जो लास्ट पेयर है, अगर आपने +1 लिखा होता तो अंदर आपके पास ये बनना था। बाहर पॉजिटिव फैक्टर है, +1 है, तो अंदर टर्म्स का वही साइन है जो ऊपर था। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये सही नहीं हुई हमारी फैक्टराइजेशन। अगर आप इस तरह से करते हो, बाहर +1 लिख के फैक्टराइजेशन करते हो, तो ये हमें आगे प्रोसीड करने नहीं देगी। द रीजन बीइंग, जब आप इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हो, जो ब्रैकेट में आपका एक्सप्रेशन बनता है वो मैच करना चाहिए। पहली 2 टर्म से जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन बनेगा और लास्ट वाली 2 टर्म से ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन जो बनेगा वो मैच होना चाहिए। दैट इज हाउ यू नो आपने ग्रुपिंग ठीक की है। तो +1 से काम नहीं चलेगा, हमें -1 लेना पड़ेगा। -1 जब आप ले रहे हो, डजंट मैटर 1 है बाहर, हम माइनस की बात कर रहे हैं, जब भी माइनस फैक्टर कॉमन होगा अंदर टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। बिकॉज इफ यू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आपको ओरिजिनल साइंस वापस मिलते हैं। I know you did not do this in detail, so I would like to just do it with me. You will know what I'm talking about. धीरे धीरे रिकॉल हो जाएगा सारा का सारा। I can send you a few questions for practice also. आप एक बार practice कर लेना. Once you have done this factorization, अगर आपकी binomials match होती हैं, that means आपका यहां तक का काम correct है। आपके पास 2 प्रोडक्ट बन गए, दोनों प्रोडक्ट में जो बाइनोमियल प्रेजेंट है वो सेम है। काइंडली ऑब्जर्व, एक प्रोडक्ट ये है, आपके पास है मोनोमियल मल्टीप्लाइड विद द बाइनोमियल, यहां पे भी आपके पास है मोनोमियल मल्टीप्लाइड विद द बाइनोमियल। द बाइनोमियल शुड बी सेम। इफ द बाइनोमियल इज सेम, उस बाइनोमियल को बाहर लिख लो और ब्रैकेट में मोनोमियल्स कंबाइन कर लो। द बाइनोमियल 4x - 1, उसको हमने निकाल लिया, मोनोमियल्स ब्रैकेट में आ जाएंगे 3x - 1। दिस इज द फैक्टराइजेशन। एंड इफ यू एक्सपैंड दिस प्रोडक्ट, अगर आप इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हो, लास्ट ईयर आपने प्रोडक्ट किया है बाइनोमियल्स का, यू विल गेट द ओरिजिनल एक्सप्रेशन बैक। आदीप, बलजीत, गुनरूप, हरमनप्रीत, हर्षवीर, हरसिमरन, बेटा योर वीडियोस आर ऑफ। मनसरूप, मृदुल, परमवीर, प्राप्ति, राघव, has everyone noted this down? Yes, ma'am. Okay. Let's take up the next part. Second part, we have 2x square minus plus 7x plus 3 equals to 0. Sorry, not equal to 0. This is simply 2x square plus 7x plus 3. Writing down the product we require. आपकी पहली टर्म और लास्ट टर्म 2 and 3. 6x plus x. 6x plus x, that's right. And we are looking for the sum to be equal to, take your middle term, +7. ये 2 फैक्ट्स को ध्यान में रख के अपनी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है आपने। जितना प्रोडक्ट चाहिए आपको उसके फैक्टर्स बना लो, 6 के फैक्टर्स बना लो। Can anyone answer what are the factors of 6? 1 into 6 into 6. 1. 2 into 3. Right? Yes. You could also write -1 multiplied by -6, -2 multiplied with -3. इन सभी का प्रोडक्ट, plus 6x plus 1x. इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है आपकी? Ma'am, it's 1 into 6. 1 1 into 6. The 1 pair into we will 6. use is 1 and 6. तो अपनी मिडल टर्म को स्प्लिट करो 1 और 6.
जो वेरिएबल था वो साथ अटैच कर दो. द वेरिएबल वाज x. पॉजिटिव है ये दोनों हमारी टर्म्स. Write down the first term as it is, the last term as it is. Take the terms in pairs. Find the common factor for the first pair. पहले पेयर में से क्या कॉमन मिलेगा आपको? मैम 2x. नहीं है, दूसरे के पास 2 नहीं है. मैम x मैम 1. x मिलेगा. We will get x. What will be left in the bracket? 2x 2x Plus 1. from the last two terms. मैम 3 3. 3 And bracket में क्या रह जाएगा आपके पास? 2x plus 1. 2x plus 1. You can see now monomial into binomial. Monomial into binomial. The binomial is same. Right, Gunroop, your answer is correct. Excuse me, ma'am. Ma'am, I have written 6x first, then 1x. No problem. No problem. Even then you will get the same answer. Ma'am, the answer is same. The answer is Answer same. will be same. Excuse ma'am. Yes, Paramveer. मैम अगर हम मैम 2x प्लस मैम 2x स्क्वायर प्लस मैम अगर हम मैम 1x और 6x की जगह मैम 2x प्लस 5x एक्सटे तब भी चलेगा? नहीं, उनका प्रोडक्ट 2x 6 plus नहीं 5x. बनता. आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो और सम 5 हो. ओके मैम. दोनों बातों का ध्यान रखना है आपको. Sum 7. एंड प्रोडक्ट 6. सो सिर्फ वही नंबर्स पिक करो. देखो बेटा, अगर आप सम की हेल्प से सोचना शुरू करो, ऐसे नंबर्स जिनका टोटल 7 बने, ऐसे तो इम्पॉसिबल पेयर्स इनफाइनाइट पेयर्स बन जाएंगे. Infinitely many numbers will have their sum as 7. 5 plus 2, आप सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव लेके के देखो. 10 minus 3, 11 minus 4, सभी का सम क्या बनेगा? 7 बनेगा. सो ऐसे इनफाइनाइट आपके पास पेयर्स बन जाएंगे. वो लिमिटेड हम कैसे करें? लिमिटेड चॉइसेस हैं आपके पास. आपको सिर्फ वो पेयर्स कंसिडर करने हैं जिनका सम 7 बनता हो, प्रोडक्ट पॉजिटिव 6 बनता हो. द साइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव 6. तो वो सिर्फ लिमिटेड सी चॉइसेस हैं आपके पास. मैंने नीचे लिस्ट की हैं. 4 पेयर्स बनते हैं जिनका जो आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन का वो पॉजिटिव 6 बनेगा. उन 4 ऑप्शंस में से किस पेयर का सम 7 बनता है वो चूज करना है आपको. आपको जितना प्रोडक्ट बनाना है वो लिख लो. वो प्रोडक्ट किन पेयर्स से बनता है लिस्ट कर लो. उन पेयर्स में से आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करनी है. और वो लिमिटेड होंगे. फैक्टर्स आर लिमिटेड. फैक्टर्स इनफाइनाइट नहीं होते, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं. तो जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा उसके फैक्टर्स में से आपको चूज करना है. Let's take up one more part. Do the next one with me. We have 6x square plus 5x minus 6. Product will be formed from the first and the last. 9x minus 4x. And kindly observe, I'm taking the signs with them. Positive 6 सबसे पहले, पीछे negative 6. मुझे minus 36 बनाना है. The sum will be obtained from the middle term. minus 9 into minus 4. Minus Oh, 9. sorry, Yes. minus 9 into positive 4. Minus 9 into no. मैम नो मैम, फिर माइनस माइनस कट हो जाएंगे. मैम माइनस 4 into 9. Sorry, Ansh, could you repeat? Ma'am, 9x minus माइनस 4. मैम 9 into minus 4. 9 into minus 4. Now how do you pick it? अभी आप ये माइंड में कर रहे हो ना, सोच के कर रहे हो कि कौन सा ऐसा पेयर बनेगा जिसका प्रोडक्ट हो -36 और सम हो +5. हम लिख सकते हैं यहाँ पे. 36 के फैक्टर्स लिस्ट करो जरा. सिर्फ 36 के साइन बाद में एडजस्ट कर लेंगे. 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 3 into 12. 4 into 4 9, into 9. 6 into 6. बिकॉज हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव है. प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है तो एक फैक्टर नेगेटिव होगा, एक फैक्टर पॉजिटिव होगा. इट कुड बी -1,
प्लस 36 इस तरह से चेक करो। मैम फिर ये वाला हमारा जो प्लस 5x वो भी पॉजिटिव बन जाए। आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैम 9x minus 4x. ये लास्ट तो रिपीट ही हो जाएगा, इसमें हम साइंस नहीं चेंज कर रहे। अब आपके पास देखो कितने पॉसिबल पेयर्स बन गए, इनमें से कोई चूज करो जिसका टोटल प्लस 5 बनता हो। 9x minus 4x. ये वाला पेयर, टेल मी इफ आई हैव चोजन। 9x minus 4x. 4 शुड बी नेगेटिव, 9 शुड बी पॉजिटिव। ये ध्यान Yes. रखना बस, ठीक है। साइंस का ध्यान रखना है, कौन सा फैक्टर पॉजिटिव होगा, कौन सा फैक्टर नेगेटिव होगा। ओनली देन यू मे प्रोसीड। सो आई एम गोइंग टू स्प्लिट माय मिडिल टर्म एज पॉजिटिव 9x minus 4x. फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। अब पेयर्स बना लो। मैम फर्स्ट 10, मैम इनमें से कॉमन 3x 3x कॉमन, यू आर लेफ्ट विद 2x 2x 3, मैम इनमें से -1 कॉमन minus -2x -2 कॉमन 2x plus 3. 3. bracket matches. If your bracket matches, take it common. Monomials together in the bracket. एक्सक्यूज मैम। Yes. मैम अगर मैं 6x स्क्वायर की जगह मैम 45x स्क्वायर उठा तो We would have large numbers, but आपको भी इतने large numbers आएंगे नहीं. There is one more way you can do the factorization. आपके पास next year proper chapter है based on quadratic polynomials and quadratic equations. तो उसमें आप learn करोगे. Okay, There ma'am. is a shortcut which you can use in case you have large values. अगर आपके पास coefficients बहुत बड़े बड़े numbers हैं, तो हमारे पास formula है, हम formula use करके factorize कर लेते हैं. अभी Okay, आपको ma'am. बहुत simple आएंगे. You will not have that complicated expressions. Okay. अभी इसके लिए practice करो. I will share a few parts. 5-7 questions मैं आपको group में भेज दूंगी. Do try. Practice हो जाएगी आपकी. You will need that for the next question also. Adeep, Yes, ma'am. the video is not on. Ma'am, I'll turn it on. Just give me a minute. Aryan Chawla. Aryan Chawla. Harmanpreet Singh. Harmanpreet Singh. Khushi Rampal, beta turn the video on. मैम मैं पानी पीने जा रही हूँ किचन में, अभी करती हूँ ऑन वीडियो. Okay. Mridul. Prapti. Ma'am done part 4. Raghav Sehdev. Raghav Sehdev. Rajveer Rishabh. Videos are off. मैम मेरे कैमरा में प्रॉब्लम है मैम. Okay. Let's do the next part. Fourth part, we have 3x square minus x minus 4. The product I want is 3 multiplied by -4, -12, and the sum should be -1 from the middle term.
3x minus 4. The factors possible are 1 into 12, make one positive, one negative, or 1 into minus 12. It could be 2 into 6, minus 2 into 3 6, into 4. or 2 into Minus 3 into 4. Minus 4 plus 3. That's right, minus 4 plus 3. I think अब clear हो गया है हम कैसे pick कर रहे हैं. Yes, ma'am. So split the middle term. Yes. I'm taking minus 4x plus 3x. I could reorder. Let's just reorder. Factorization easily हो जाएगी. Positive 3x minus 4x minus 4. Take the terms in pairs. Look for a common factor. First two में से 3x common है. X plus 1 in the brackets. Last two में से negative 4 common है. And in the brackets you will have x plus 1. Now your binomial can be separated. The monomials will be put together in the bracket. Has everyone written this? Yes, ma'am. Once again, जो भी काम हमने right side पे किया है, it's not necessary to be shown. But since you are doing it for the first time, I would advise you कि आप लिख के करो. Can we take up the next question? Yes. Question number 5th, we have to factorize cubic polynomial. Very important question. Generally ये 4 marks में आता है. मैम 4 ऊपर marks वाला में क्वेश्चन मैम 2 और 3 मार्क्स पे आएगा. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो अभी आपने 4th क्वेश्चन किया है, वो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, बट इट एक्चुअली इज वन ऑफ द स्टेप्स फॉर 5th क्वेश्चन. जो अभी आपने काम किया है Okay, 4th ma'am. क्वेश्चन में, वो आगे एक स्टेप बनता है 5th क्वेश्चन का. आई एम Okay, गोइंग टू ma'am. डिस्कस फर्स्ट पार्ट विद यू. पहले समझ लेना, फिर नोट डाउन करना. First question, we have x cube minus 2x square minus x plus 2. आपके पास cubic polynomial है. To begin with, the first step is to find out 1, 0 for this polynomial. We want to find out 1, 0 for this polynomial. I'm going to represent my polynomial as px. Px equals to x cube minus 2x square minus x plus 2. Step 1, start with factors of the constant term. मैम x minus 1. सिर्फ constant term पिक करो. Constant term कौन सी है? Last वाली term, positive 2. इसके factors क्या क्या बनेंगे? मैम 1 minus 1 2 minus 2. 2 किस किस से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव 1 से डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव -2 से भी. आउट ऑफ दीज 4 वैल्यूज, ये जो मैंने 4 फैक्टर्स लिस्ट किए हैं, आपको इनमें से ऐसी वैल्यू ढूंढनी है which will become 0 of px. Start with the factors of the constant term. जितने फैक्टर्स आपको मिलेंगे उनमें से आपको सिर्फ एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि px 0 बन जाए. आई एम गोइंग टू गो विद ट्रायल एंड एरर. पहला फैक्टर ट्राई 1 into minus 1. ओके, 1. लेट्स ट्राई विद 1. मैं 1 यूज कर रही हूँ px में, एंड वी आर गोइंग टू सी इफ माय आंसर कम्स आउट टू बी 0. आंसर इज 0. मैम यस. Yes. So जो वैल्यू मैंने ट्राई की थी x equals to 1, it is a 0 of, Polynomial. this is your first step. This is your first step to मैम हमने मैम सारी वैल्यू पुट करके देखनी है सिर्फ एक ही. सिर्फ you could try maybe 2 or 3 जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता. ओके मैम. एक चाहिए, बस एक चाहिए. Excuse हो me, सकता है हो सकता है आपके पास 5-6 फैक्टर्स हों. उन 5-6 फैक्टर्स में से हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए जिससे पॉलिनोमियल 0 बन जाए. जस्ट वन. ओके मैम. To proceed to the next step, we need 1, 0. Yes. मैक्सिमम कौन से नंबर तक चेक कर सकते हैं? बेटा ये जो फैक्टर्स लिस्ट किए हैं ना मैंने कांस्टेंट टर्म के, सिर्फ यही वैल्यूज ट्राई करनी है आपको.
मैम हमें 2x स्क्वायर नहीं ले सकते थे? नहीं नहीं, कांस्टेंट लेना है x की जगह पे आपको। ओके मैम। और आपको कौन सी ऑप्शंस मिलेंगी, वो ये हैं जो मैंने ब्रैकेट में लिस्ट की हैं। लिमिटेड सी चॉइसेस होंगी आपके पास। वी आर वर्किंग विद नंबर्स, नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो हमें अपनी चॉइसेस को लिमिटेड करना है ताकि हमें पता हो कि रुकना कहाँ पे है। ऐसे तो हम ट्राई करते जाएंगे। द चॉइसेस यू हैव विल बी फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ योर कांस्टेंट टर्म। आपके एक्सप्रेशन में जो लास्ट वाली वैल्यू है जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, उसके फैक्टर्स लिस्ट कर लो। उस लिस्ट ऑफ फैक्टर्स में से कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ लो जिससे आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए। Once you have obtained the 0 of px, from here, I want you to transpose the values to the left-hand side. X minus 1 equals to 0. ये जो आपका left-hand side पे linear factor बना, this is a factor of px. 0 से आपने क्या obtain किया? Factor obtain किया. Tell me if this will be true. Am I correct to say x minus 1 is a factor of px? मैम यस। Right? x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगी तो वो पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा. रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0. मैम सारे आंसर्स x प्लस 1 और x माइनस 1 से निकल देंगे ना? Yes. सारे उससे निकलते हैं ना? सारे इससे निकलते हैं. मैम फाउंड द आंसर। Very good. This is step 1 complete. Step number 2 is to divide the polynomial px by this, लॉन्ग डिवीजन। by long division. This you cannot avoid. आपको यहाँ पे long division करनी है. अपना polynomial जो beginning में था उसको अंदर लिखो. जो आपने factor obtain किया अभी step 1 में उसको आपने बाहर लिखना है. Carry out the division. We want to obtain the quotient. And since हमने यहाँ पे लिखा था x minus 1 is a factor, this means the remainder will be 0. तो ये जो आपकी Zero, long yes. division है, the one you are showing in the fair work, इसमें आपका remainder 0 बनना चाहिए. Kindly note down till here and proceed with the division. x minus 1 into x square। x square। Change the signs. Signs will be changed. It will be minus x square minus minus x. Now we will multiply by minus x. 1 multiply with minus 2. Signs will be changed. You get minus 2x plus 2, signs change. Plus 2 minus cut. And your remainder comes Answer out to will be be this is must. This is very important that your remainder should come out to be 0. If it doesn't come out to be 0, either आपकी division गलत है या आपका step 1 जो आपने किया था वो गलत है. आपने factor ही गलत ढूंढा है. Right, Gunrup. Gunrup, beta, you may do with the next one. You may start with the next one. I think you know the way to do this. आप next part try कर सकते. Okay, ma'am. Your time's up. We will Okay, ma'am. meet tomorrow and we'll continue from here. God bless you, everyone. Do revise your classwork. ओके मैम।